Hello, students. I hope you all are doing well. So, welcome back from Christmas vacation, and I wish you a very happy new year. Be safe, be healthy, and yes, focus on studies as well because you're going to go in ninth standard. So, yes, today's topic is lesson number 12, acid and base. Introduction to acid and base. So as you can see, what are acid and what are base? How to classify the things into acid and base? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एसिड क्या है और बेस क्या है, राइट? तो अगर हम बात करते हैं एसिड की, तो जो भी खट्टापन है, जो आपको खाने में खट्टापन जैसा जो स्वाद आता है, जैसे कि लेमन और टैमरिंड, ओके. So these sour taste is because of the acid. On the contrary, on the opposite, अगर आप बेस के बारे में बात करते हो तो उसमें जो कड़वा स्वाद होगा दैट इज़ द बेस. ऑल राइट. सो लेट अस नो व्हाट इज़ एसिड. So acid present in foodstuffs are called natural acids or organic acids. These acids being weak in nature are called as weak acid. Some acids are strong in nature. So acid के दो तरीके होते हैं, which is weak acid and strong acid. All right. So and they are inflammatory, okay, or you can say caustic. And also examples are strong acid will be your sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acids, okay. And please see the formula as well. And these acids are called as mineral acids. The skin gets burned when their concentration solution, or you can say concentrated solution, falls on skin, and similarly their vapors of if inhaled can be harmful to health. Because acid आपके बारे में पता आपने सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स भी हुए हैं और वर्ल्ड वाइड कि एसिड अगर स्किन पे गिरता है तो उससे क्राइम भी होता है, राइट. सो दैट स्किन गेट्स बर्नड और फिर वो कभी भी नॉर्मल स्किन नहीं बन पाती है. So strong concentrated acids are converted into their dilute acids by slowly, or you can say slowly, adding them into water, and such dilute acids are less harmful than their corresponding, or you can say corresponding strong acid. अब सारे एसिड बुरे होते हैं क्या? सारे के सारे एसिड हमारे हेल्थ के लिए बुरे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है. देर आर एसिड्स विच इज़ रियली वेरी वेरी इन्फ्लेमेटरी, विच कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन और which can actually deformatize your skin. They can deformate, okay. But then there are some acids which are very good for your health. For example, the ascorbic acid or vitamin C, you can say, right? All those acids are very good for our health. So we'll be categorizing the acids even in further studies. Now let's talk about base. So if you taste dilute solution of baking soda, you will find it astringent or bitter. बेकिंग सोडा खाने में हम यूज़ करते हैं, सबके घर में अवेलेबल होता है. अगर आपको टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कम कीजिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी बिटर, कड़वा होता है टेस्ट में. तो सब्सटेंसेस हैविंग एस्ट्रिंजेंट और बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच आर कॉल्ड एज बेस. Example, lime water, baking soda, caustic soda, and soap are all bases. Bases are completely different from acids and chemically they are properties. Their properties are opposite of acids, obviously. ठीक है. And they are also inflammatory to skin in their concentrated form. We know that the distilled water is tasteless and water is neither acidic nor base. तो ऐसी चीज़ें जो ना ही एसिड है और ना ही बेस है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं. ऑल राइट. सो वाटर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड बेस ऑल्सो कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम इफ़ दे आर कॉन्सेंट्रेटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नींबू लिया, नींबू को आपने बिना पानी उसका पूरा जूस निकाला तो उसका जो पानी है वो जो जूस है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, पर उसी जूस में आपने पानी मिला दिया तो फिर क्या होगा कि वो जो जूस है वो पूरा का पूरा डाइल्यूट हो चुका है क्योंकि उसमें आपने पानी मिला दिया. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड. Now this is very important topic which is called as indicator. So what do you mean by indicator? अब कोई भी substance acid है या base है वो कैसे पता चलेगा? तो there are substances which indicate that, and these substances which indicate whether the given substance is acidic or basic is called as indicator. There are natural indicators and there are synthetic indicators, okay. तो हमें indicator के बारे में हम पढ़ते हैं अभी. The substances which are neither acidic nor basic and are chemically inert in nature, all right. But they don't take part in any chemical reaction with the substance. They just show you whether the substance is acidic or base. So for example, अगर आपने इंडिकेटर को एसिडिक सब्सटेंसेस में डाला तो आपको रेड कलर फॉर्मेशन मिलेगा. अगर आपने नेचुरल इंडिकेटर को या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हर एक सब्सटेंसेस का कलर बताता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल है जो
एसिड के साथ भी रिएक्ट करके कलर दिखाएगा और बेस का भी कलर दिखाता है, ठीक है। तो दैट इज़ ब्लू कलर फॉर बेस एंड रेड कलर फॉर एसिड। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज़्यादा कलर ब्राइट होगा रेड कलर का, और जितना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा कलर होगा बेस का स्ट्रॉन्ग। एंड द रेंज इज़ पीएच, जिसे हम कहते हैं दैट इज़ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एंड द रेंज ऑफ कलर्स इट्स फ्रॉम 1 to 14. वी विल सी दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन आवर हायर स्टडी standard and also in this chapter, okay. So touching or tasting of acid or base is very harmful, and hence typical indicators are used to recognize them. All right, so the substances which change their colors in presence of acid or base are called as indicators. Now, indicators in laboratory. So in the laboratories, litmus paper is mainly used to test alkali or base. Alkali matlab you can say the substance which is the solvent which is used for making the solution is water. एंड बेस। सो मेनली द लिटमस पेपर क्या होता है, एक पेपर जिसमें एक केमिकल होता है जो लाइकेन से एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है और उसको हम पेपर में लगाते हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ लिटमस पेपर, वन इज़ ब्लू एंड वन इज़ रेड. So this paper is made by an extract of your lichen plant, and it is red or blue colored. ठीक है. So blue litmus paper turn red on dipping in acid, and red litmus turns blue by alkali. Similarly, phenolphthalein, methyl orange and methyl red are used in laboratory in solution form. Now, methyl orange indicator becomes pink in acid and yellow in alkali, and phenolphthalein remains colorless in acid and becomes pink in alkali. Universal indicators, which are in a liquid state, change their color in the presence of acid and base. Now, indicators in laboratories. So in the laboratory, litmus paper is mainly used to test alkali or base, and this paper is made by an extract of lichen plant, and it is red or blue color. And as we have already studied that the presence of acid and base is basically recognized by this indicators. All right, so we will skip this part. So over here we have methyl orange, phenolphthalein and methyl red, okay. And you have litmus paper, you can see actually this is blue one, the down one is blue and it is pink. So these are the laboratory indicators, and it is synthetic, यानी कि इसे हम laboratories में बनाते हैं. और जो natural होगा उसे हम कहाँ होता है, कैसा होता है, वन ऑफ द एग्जाम्पल क्या होगा हम पढ़ेंगे. सो नेम ऑफ द इंडिकेटर इज लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, नेफ्थलीन एंड मिथाइल रेड. कलर ऑफ द इंडिकेटर्स ब्लू, रेड, ऑरेंज, कलरलेस रेड. अगर लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हुआ है, color of the indicator is blue, right. Name of the indicator is litmus paper. Color in acid is red, color in alkali is blue. Litmus paper, color of the indicator is red, red remains same and blue. तो एसिड में क्या चेंज दिखते हैं, अल्काली में क्या चेंज दिखते हैं. लिटमस पेपर अगर एसिड में डाला तो रेड होगा, लिटमस पेपर अगर आपने बेस में डाला तो वो ब्लू होगा. और मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक होगा एंड अल्काली में येलो. लिटमस पेपर ब्लू एंड रेड राइट दिखाता है, मिथाइल ऑरेंज पिंक एंड येलो दिखाता है. फेनोल्फथेलिन कलरलेस और अल्काली में पिंक दिखाता है. एंड मिथाइल रेड है तो नाम जैसे पता है आपको वो रेड होगा, कलर ऑफ द इंडिकेटर विल बी रेड, एंड एसिड में वो रेड होता है, कलर इन अल्काली इज़ येलो. तो हम बेसिकली लिटमस पेपर की अगर हम बात करते हैं जो वर्ल्ड वाइज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसमें ब्लू और रेड कलर दिखाया जाता है. फेनोल्फथेलिन कलरलेस होता है, मिथाइल ऑरेंज तो वो पिंक कलर दिखाता है एसिड में, येलो कलर अल्काली में, और मिथाइल रेड भी रेड कलर दिखाता है एसिड में एंड येलो कलर दिखाता है अल्काली में. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी डोमेस्टिक इंडिकेटर. जैसे जो हमारे घर में अगर हमें कुछ पता करना हो कि सब्सटेंस एसिड है या बेस, तो हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ करके हम सब्सटेंस को पता कर सकते हैं कि द सब्सटेंस इज गिवन सब्सटेंस इज वेदर एसिडिक और बेस. Okay, so on known availability of laboratory indicators, natural indicators can be made by using several domestic substances. So you must have seen yellow food stain turning red after washing with soap. अगर आपने कभी देखा हो तो. All right, and this color change in a result of chemical reaction between turmeric and alkaline material of soap. तो अगर आपने हल्दी को साबुन में मिलाया तो आपको एक रिएक्शन दिखेगा, उसमें जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, right? Here turmeric acts on as an indicator, and natural indicator can also be prepared
फ्रॉम रेड कैबेज, रेडिश, टोमेटो एंड सिमिलरली फ्रॉम हिबिस्कस एंड रोज। तो ये जो आपने आइटम देखे नीचे, ये है डोमेस्टिक इंडिकेटर। ओके, तो आपको ये आपका ये होमवर्क है कि अगर आप टर्मरिक को सोप में मिलाते हो तो कौन सा कलर आएगा। और सोप अगेन आई एम टेलिंग इट इज़ अ बेस, नींबू पानी इट इज़ एसिड। तो आपके पास नींबू भी होगा घर में, साबुन भी होगा, आप टर्मरिक को दोनों में मिलाओ और फिर मुझे बताओ कि कौन सा कलर आपको मिला। ठीक है, सो नाउ ये दूसरा होमवर्क है इस लेसन का कि आपको ये जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। लाइम जूस, इफेक्ट ऑफ टर्मरिक पेपर, एसिडिक और बेस। ओके, और यू कैन से टर्मरिक को अगर अपने नींबू में मिलाए तो क्या मिलेगा, लाइम वाटर दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो आप सोप का पानी या शैम्पू का पानी यूज़ कर सकते हो और उसमें टर्मरिक मिला सकते हो, और फिर आपको बताना है कि लाइम जूस एसिडिक है या नहीं, या लाइम वाटर एसिडिक है या बेस। ठीक है, now this is the another chart which you have to complete. Sample solutions are lime water, NH4OH, sodium bicarbonate, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विनेगर। ये आपको अगर पास में नहीं है तो हमारे स्कूल में ये अवेलेबल है, और अगर होप सो हमारा स्कूल जल्दी खुल जाए तो हम ये एक्टिविटी करेंगे, लेकिन ऑनलाइन आप इसके बारे में सर्च करके इस चैप्टर को भर सकते हो। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन लिटमस पेपर। अब ये जो सोल्यूशन है पहला वाला, जहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि ये सब्सटेंस एसिड होगा या बेस, ऑब्वियसली इट विल बी एसिड। और ये जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में जा रहा है, चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द सेकेंड बीकर द सोल्यूशन इज basic in nature. So as acid is such a substance which gives H plus ions in solution state, example HCl, dissociate in water solution. अब देखो pH है जो, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर HCl की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज डिसोसिएट्स यानी कि सॉरी, इसमें H और Cl दोनों अलग अलग हो जाता है। तो ये जो आयन्स है जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज डिसोसिएशन। और ये कब होता है, जब आप HCl को पानी में मिलाते हो तो देयर विल बी H प्लस आयन्स एंड Cl माइनस आयन्स, दैट इज कैट आयन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली, विच विल बी डिफ्रेंशिएट, जो दोनों दोनों अब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सम एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3। आप इसका फॉर्मूलाज याद करोगे। एंड इन कोल्ड एरेटेड ड्रिंक्स, ascorbic acid, citric acid in lemon and other fruits, acetic acid in vinegar, etc. And our daily diet contains a few natural, that is organic acids, and they are mild in nature and hence are not harmful like mineral acid. Mineral acid अगर हमने बात की तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा, और हमें एज एन फुल ऑर्गन उसे बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। लेकिन जो एस्कॉर्बिक एसिड की बात की, सिट्रिक एसिड की बात की हम लोगों ने, तो वो मिनरल एसिड नहीं है। तो दोज विच आर नॉट मिनरल एसिड्स आर नॉट हार्मफुल टू अवर बॉडी। ऑल राइट, इफ़ यू विल टेक अगेन इन अ limited concentration. Obviously if you take anything which is more than required, obviously it is going to harm you in some other way, right? So these are the, again, a chart. Vinegar is an acetic acid. Which acid is present in which substance? Again I am going to give you a test in this lesson, so I am going to ask you any question related to this. For example, curd, just tell me the acid present in the term curd. It will be lactic acid. Lemon, it will be citric acid. Tamarind, tartaric acid. Tomato, oxalic acid. Orange, sorry, ascorbic acid. And vinegar is acetic acid. So you just have to remember the acid which are present in the foodstuffs. Properties of acids. So acid are sour in taste, हमें अभी तक ये पता चल गया है. Acid molecules contain hydrogen ions as a main constituents, हमें ये भी पता चला dissociation of HCl molecule की वजह से. एंड देन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ये याद रखना कि एसिड जब भी किसी मेटल, अगर आप कोई भी मेटल का स्ट्रिप एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स एंड लिबरेट्स CO2 गैस. यानी कि अगर कोई भी सोल्यूशन अगर आपने जो जिसमें कार्बोनेट ज़्यादा है वो होगा, तो एसिड अगर किसी भी सब्सटेंस में जिसमें कार्बोनेट्स हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड. अब अगर हम बात करते हैं बेस की, तो हम बात करते हैं बेस आर सॉर और बिटर. ऑब्वियसली इट इज़ बिटर इन टेस्ट, क्योंकि बेस जो है वो एसिड से एकदम अलग है. ऑल राइट, सो लेट अस सी uses of acid first.
तो acids are used in the production of chemical fertilizers. Acids are used in the production of explosives, oil purification, medicines, dyes, and paints. Hydrochloric acid is used for the preparation of different types of chlorides, salt, and diluted H2SO4, that is sulfuric acid, is used in the batteries, that is electric cells. Diluted hydrochloric acid is used for sterilization of water, and acid is also used for making white paper from wood pulp. Now, this is causticity of concentrated acid and base. So what, see, again, please pay attention over here that dissolution of concentrated sulfuric acid in water generates large amount of heat, obviously. So therefore, जब आपको डाइल्यूट करना होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को, तो हमेशा याद रखना आपको पानी के अंदर स्लोली एसिड डालना है, क्योंकि अगर आपने बहुत सारे एसिड में पानी थोड़ा सा डाला तो एक्सप्लोजन होगा, तो खूब सारे पानी में आपको एसिड डालना है. ऑल राइट, सो बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉस्टिक इन नेचर एंड देयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस बर्न स्किन एज इट डिकम्पोजेस द प्रोटीन इन द स्किन. ऑल राइट, तो ये हमेशा ध्यान रखना. नाउ नेक्स्ट इज we have seen that mineral acids are harmful to body. Examples, again, we have known, that is hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. However, several organic acid are present in our body and in plants which are useful to us. Obviously अगर हमारे body के अंदर है तो it is useful. So DNA, that is deoxyribonucleic acid. So again आपने देखा आपका DNA itself is an acid and which is present in our body and decide hereditary property. Proteins which are part of our body cells are made up of amino acid, and fat of our body is formed by fatty acids. So these are the organic acids. Again, fatty acids, DNA, proteins, that is it has amino acids. तो आपको organic acids का भी example याद करना है. Now base. So as you can see यहाँ पे है sodium hydroxide. अब sodium hydroxide का formula है NaOH और अपना acid का क्या था HCl. तो अगर H पहले आता है तो that will be your एसिड. OH अगर बाद में आ रहा है तो दैट विल बी द बेस. ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, OH अगेन एंड में आ रहा है, अगेन अ बेस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर ऑल हैविंग हाइड्रोक्साइड HO or you can say OH in them. So these are all called as base. और again one more thing, if you remember, NaOH जब अलग अलग हो रहा है तो Na plus and OH minus ions हमें मिल रहे हैं. तो main constituent of base are OH minus ions, that is anions. Now name of the base is sodium hydroxide, that is caustic soda. Formula is NaOH. तो आपने यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करनी है वो है कि अगर आपने बेस पढ़ा है तो यहाँ पे NaOH आएगा, तो OH बाद में आ रहा है. OH 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 and OH. जहाँ पे भी आप OH देखोगे सेकेंड स्टेज पे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, तो यहाँ पे आप सेकेंड पोजीशन पे आप OH देखोगे तो इट विल बी बेस. ठीक है, इट विल बी अ बेस. पर आपको फिर ये कैसे पता चलेगा कि एसिड कैसे क्या होगा, आपको कैसे, अगर मैंने लिखने के लिए बोल दिया सपोज, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि दैट इट इज़ एसिड. तो एसिड में क्या होगा HCl, तो H पहले आ रहा है और बेस हो गया तो NaOH, तो OH बाद में आ रहा है. तो ये याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन पे अगर H है तो इट विल बी एसिड, सेकेंड पोजीशन पे OH है तो इट विल बी बेस. तो आप ये अब कम से कम देख के बता सकते हो, H यानी कि हाइड्रोजन आयन, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, तो वॉशिंग सोप और शैम्पू, लाइम वाइट वॉशिंग, और you can say all these things, the acidity, your antacids and NaOH, that is ammonium hydroxide, it is used as fertilizers. तो आप वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कालीज, जैसे हमने पहले पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कालीज में बेस हैज़ बिटर टेस्ट, एसिड का क्या था सार टेस्ट. दे आर स्लिपरी बट एसिड्स आर नॉट. बेस कंटेन OH माइनस एज एन मेन कंस्टिट्यूएंट, एसिड में क्या था H प्लस. मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. ऑल राइट, सो और वहाँ पे क्या था, जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस.
ठीक है। तो ना व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। अब मैंने आपको पानी के बारे में बताया था कि वो ना ही एसिड है ना ही बेस है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट एसिड कंटेन्स H प्लस हाइड्रोजन आयंस एंड बेस कंटेन्स OH, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस। Ions, that is plus, which is H is having plus charge, OH is having negative charge, so these charged atoms. So salts and water are formed by combination of acid and base. So acid base will give you salt and water. That means acid का example लेते हैं, let us see hydrochloric acid, strong acid, base NaOH, again strong base, that is sodium hydroxide. तो हमें दोनों के रिएक्शन में क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड या ये एसिड है या ये बेस है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। और हमें क्या फॉर्मेशन मिल रहा है, वाटर। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पे एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं, और इस रिएक्शन को, टोटल रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। So hydrochloric acid is present in our stomach. It helps to ease digestion process. However, excessive acid leads to indigestion. तो ये जो मिनरल एसिड है जिसकी हम बात कर रहे थे HCl, हमने तो कहा था ये तो हार्मफुल है, लेकिन ये हमारे पेट में फिर भी होता है। दैट मीन्स क्या, ये पूरी तरीके से हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर वो स्टमक के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली इट इज़ हार्मफुल। तो स्टमक को का जो इंटरनल लेयर होता है, दैट इज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय अ म्यूकस लेयर विच प्रिवेंट्स द वॉल ऑफ स्टमक्स टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So antacids are used to control these hyperacidity. These medicines contain milk of magnesia MgOH. अब OH तो second position पे है, that means it is a base. And such alkaline medicines neutralizes excess acid present in the stomach. Now why we are saying alkali and not base, again because I have told you it is the solution in water, ठीक है। So the acidity of soil increases due to excessive use of chemical fertilizers, and under the guidance of agriculturists, limestone or lime water is mixed in the acidic solution. Such alkaline substances neutralize excess acid present in the soil and which is helpful for the growth of the crop. So this is all for today, and this lecture is done, this lesson is done. Because you will be having your exams from next week, I want you all to please read it, and any doubt you can please ask me, because from next lecture onwards I may give you the exams. Clear? Take care.